careful and will inshallah save the recordings. Right जी. तो अब हम चलते हैं जी समर सॉरी हमने विंटर का 23 किया था 20 का विंटर 23 वेरिएंट किया था 2020 का जबकि वेरिएंट 21 हमने नहीं किया था विंटर का। तो मैं जल्दी से वेरिएंट 21 विंटर का ये उसकी मार्क्स की मैं पहले ये खोल लेते हैं और फिर उसके बाद पेपर खोल लेते हैं and let's just get on with it. Winter 21, yes. जी बच्चों ये क्वेश्चन सेक्शन ए इसका डेटा देखते हैं महिरा आबिद कौन सी हैं महिरा इज दैट यू फ्रॉम द ओरिजिनल अकाउंट या शैल आई रिमूव दिस पर्सन मुझे जल्दी से बता दो Sir, it's me. ओके ओके वंडरफुल चले जी लेट्स मूव ऑन सेक्शन ए इट्स अबाउट लैटविया ठीक है सर कौन सा ईयर है? ऊपर लिखा हुआ देखिए विंटर 20 क्वेश्चन पेपर 21 so let's start with its data. Latvia becomes a banking capital between European Union's East and West. ये बीच में लोकेटेड है यूरोप के वेस्ट और ईस्ट के तो ये बैंकिंग कैपिटल बन गया है Latvia regards itself a financial bridge between Europe's East and West. Since the Soviet Union's collapse in 1991, जो जॉइंट रशिया collapse हुआ था 91 में उसके बाद से Latvia's population 2.2 million joined the European Union जिसकी population 510 million थी in 2004. तब से it has since built itself into a banking center for people from all parts of Europe and many other parts of the world. Although its reputation as a financial center has been growing since 1988, when two entrepreneurs founded a private bank, Parex Bank, in the capital Riga. तो बैंकिंग के ऊपर इसकी सर्विसेज का काफ़ी चर्चा है पूरी दुनिया में भी और स्पेशली यूरोप के ईस्ट एंड वेस्ट में जब दो भाइयों ने मिलकर पैरिक्स बैंक बनाया था तब से ये बैंकिंग सेक्टर इसमें बहुत डेवलप हुआ है स्पेशली यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के बाद और ज़्यादा तरक्की आई है In the early years of 21st century, favorable credit conditions in Latvia contributed to an economic boom, but in the global financial crisis of 2007 and 8, Parex Bank, by then Latvia's second biggest bank, needed government assistance and was nationalized. Government ने खरीद लिया उसको क्योंकि वो डूब रहा था जब रिसेशन आया था वर्ल्ड वाइड The financial crisis caused this financial crisis. Yeah, the financial crisis caused Latvia's annual inflation rate to rise rapidly to 17.7% in May 2008, which was significantly higher than its annual inflation average rate, 3.7% for the period between 1998 and 2018. 20 साल से 3.7 एवरेज चल रही थी और अब 17.7 पे जंप कर गया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से In 2008, the Latvian government decided to substantially reduce the size of budget deficit. Budget deficit का size कम करना means taxes बढ़ाए होंगे, spending कम की होगी. In an attempt to reduce the relatively high rate of inflation, contractionary fiscal policy की बात हो रही है. Through a series of fiscal measures such as increasing taxation and reducing public spending. तो बच्चा आया उसको ज्वाइन करवा देते हैं कौन है खाली अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम हु आर यू खाली अब्दुल्ला के नाम से यस वही है हद हो गई है anyways चलो now it's not even annoying anymore it's becoming ridiculous अच्छा जी तो बजट डेफिसिट अपना कम किया यानी स्पेंडिंग उन्होंने बताया थ्रू अ सीरीज ऑफ फिस्कल मेजर्स सच एज इंक्रीजिंग टैक्सेशन एंड रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग Latvia emerged from the global financial crisis to become EU's, yani European Union's fastest growing economy. The intention was that Latvia would eventually join the European Union's common currency, the euro. Figure 1.1 below shows the exchange rate of Latvian lats, the country's former currency, per euro from 7 to 8, 13.7 lakhs में एक यूरो आ रहा था थ्रू आउट दिस पीरियड
ये कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है जिसमें एक्सचेंज रेट बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा? फिक्स्ड। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट मैनेज कर रही है. वेरी गुड. In January 14, Latvia did join the euro, and this was welcomed by business leaders and economists in Latvia, stating that it would improve Latvia's credit rating and attract foreign investors. जारी बात है, यूरो बड़ी करेंसी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी. The governor of Latvia's central bank uh, said the euro brings stability and certainty, definitely attracting investment. However, not everybody in Latvia supported the introduction of the euro. Many people thought that Latvia would lose a certain amount of economic independence and that it would lead to an increase in prices and taxes. कुछ लोग उसके खिलाफ भी थे. Question 1 का part A. Describe the functions an entrepreneur plays in the production process. Let's go to who should I go to? वसफी बताओगे बेटे, entrepreneur कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? जी वसफी, आई एम वेटिंग. सर, रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है उसको सही तरह यूज करना. रिस्क टेकिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिसोर्स एलोकेशन की जगह कोई और वर्ड यूज करो. एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को क्या करता है? कंबाइन करता है during production process. He combines resources to produce goods and services with an objective and doing so takes a risk. इसके अलावा innovation करता है, decision making करता है. डिसीजन मेकिंग. ये सारे entrepreneur के functions. तो आपने दो functions सर, ये describe कर दिए. कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. Sorry? ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहे आप सर, डिसीजन मेकिंग वगैरह. नहीं, entrepreneur क्या काम करता है उसके functions बता रहे हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, सब रिसोर्सेज को कंबाइन करता है. फिर डिसाइड करता है कैपिटल इंटेंसिव जाना है, लेबर इंसेंटिव जाना है, रिसोर्सेज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है. फिर रिस्क लेता है कि मुझे लॉस भी हो सकता है. इनोवेशन करता है, नई नई प्रोडक्ट्स लेके आता है. तो सब उसके बेटे ये फंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. क्लियर हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? रिस्क टेकर होना चाहिए, ठीक है. कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसके पास फाइनेंस होना चाहिए, उसके पास नया आइडिया होना चाहिए. समझ आ गया? हमारे कोर्स में वो नहीं है, बिजनेस में है वो. ओके सर. राइट. चले जी. When Latvia joined the European Union, it became part of a custom union. How does a custom union differ from a free trade area? अब इसका बेस्ट तरीका क्या है? फ्री ट्रेड एरिया को डिफाइन करें, कस्टम्स यूनियन को डिफाइन करें, और फिर बताएं डिफरेंस क्यों है. ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन स्टिल दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. साइम, अभी ये मुझे शक पड़ रहा है कि ये साइम भी कोई और बच्चा है. Shall I not let them enter? Let me just check. अस्सलाम वालेकुम साइम, इज दैट यू साइम शाहिद? जल्दी से कंफर्म करें. हद होगी यार, गानों की चॉइस भी चेक करो. राइट जी. सो माइक्रोफोन की क्वालिटी बहुत खराब थी. बहुत ख़राब है, उसकी दिमाग की क्वालिटी ख़राब है बेचारे की. आप माइक्रोफोन पे परेशान है. राइट जी. When Latvia joined European Union, it became part of a custom union. कौन से बच्चों को नहीं पता फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, कस्टम यूनियन क्या होती है? वो जो हमने लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन का एक टेबल पढ़ा था, वो बता दें ताकि मैं उस हिसाब से पूरी डिटेल बता दूँ. नहीं बताते तो फिर आपसे पूछना पड़ेगा. माहीन फातिमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ फ्री ट्रेड एरिया? सर, जहाँ पे कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं लगा होता, फ्री ट्रेड होती है. शाबाश. व्हेन टू और मोर कंट्रीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू ट्रेड फ्रीली, रिमूव टैरिफ कोटास वगैरह. शाबाश. कस्टम यूनियन क्या होता है मुनीब? एनीवन एल्स जी? कस्टम यूनियन क्या होता है? यामीन. सर, जब हमारी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स होती यस, हैं फ्री ट्रेड भी हो रही होती है और एक्सटर्नल टैरिफ भी. तो दोनों का डिफरेंस क्या है जी? एक्सटर्नल, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ इज ओनली पार्ट ऑफ कस्टम यूनियंस. फ्री ट्रेड एरिया में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं होते. अभी असल शायद शायद आगे लगता सर, है. आप फ्री ट्रेड एरिया की डेफिनेशंस एक बार रिपीट कर सकते हैं? श्योर, मैं करता हूँ. साइम शाहिद, इज दैट यू बेटे? जल्दी से कंफर्म करो प्लीज.
इट डज सीम लाइक योर जेन्युइन आईडी, लेकिन अगर नहीं है तो मुझे बता दें। जी सर मैं थैंक यू। आपके नाम से भी कोई और बच्चा आया था। एनीवेज, तो लेट्स सी जी। ओके। जी, फ्री ट्रेड एरिया वसफी होता है जिसमें टैरिफ कोटाज वाला कंट्रीज दो या उससे ज़्यादा एक जोन में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका डिसाइड करेंगे हम आपस में फ्री ट्रेड करेंगे। दे विल साइन एन एग्रीमेंट वेयर दे विल रिमूव टैरिफ कोटाज एंड बैरियर्स एटसेट्रा, एक्सपोर्ट सब्सिडीज वगैरह खत्म कर देंगे। समझ आ गया? यस सर थैंक यू। जबकि कस्टम यूनियन क्या है, उसमें फ्री ट्रेड तो ऑलरेडी हो रही है, एग्रीमेंट साइंड है। अब उन्होंने मिल के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तीनों ने मिल के कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा दिया। यानी बाहर से कोई भी ट्रेड आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, उन पे इन तीनों कंट्रीज में एंटर होने से पहले लेट्स से 10% टैरिफ लग जाएगा। समझ आ गई? कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ डिफरेंस है दोनों का। So far it was an easy questions. Let's see. As a result of the global financial crisis in 2007 and 8, there was a large capital outflow from Latvia. पैसा मुल्क से बाहर गया। लैटविया में रिसेशन था तो लोगों ने बाहर पैसा ले गए। Use a supply and demand diagram to explain how the exchange rate how the exchange rate against the euro was maintained as shown in figure 1.1. Figure 1.1 में उन्होंने 0.7 यूरोस पर पाउंड पर यूरो फिक्स किया हुआ था। हालांकि मुल्क से पैसा निकला, करेंसी की सप्लाई बढ़ी होगी, फिर भी उन्होंने रेट कैसे सेट रखा? कैन समबडी टेल मी? क्या ग्राफ बनना चाहिए यहाँ पे? क्या लेबल्स होने चाहिए? क्या करना चाहिए? जी बताइए। डिमांड और एक्सचेंज रेट का बना, एक 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 बच्चा बताएं, कोई एक बच्चा। सर जो लेट है उसकी डिमांड उन्होंने इंक्रीज करी ना, वो देख के शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले तो इधर लेबल बताइए मुझे, आदम, क्या लेबल होने चाहिए? सर प्राइस ऑफ फ्लैट इन यूरो। शाबाश, प्राइस ऑफ लैट इन यूरो। और इधर क्वांटिटी ऑफ लैट। क्वांटिटी। अब हमने सप्लाई कर्व लगाया लैट का, डिमांड कर्व लगाया, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम बना, इस पे जो रेट था उसको हम डेटा के मुताबिक 0.7 पर यूरो करते हैं और इसको हम लिख देते हैं जी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट, जिस पर उन्होंने रखा। अब आउटफ्लोज हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, सप्लाई कर्व बाहर शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम नीचे आना चाहिए था, प्राइस कम होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने, सॉरी मैं क्वांटिटी नहीं बनाई थी, उन्होंने क्या किया, जितना सप्लाई ज़्यादा हुई थी यानी सरप्लस हुआ था वर्ल्ड में, उसको फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बेच के खरीद लिया और अपना रेट वापस रखा। बार बार ऐसे करते रहे होंगे। जब भी एक्सचेंज रेट 0.7 से ऊपर नीचे जाने लगेगा, ये इंटरवीन करेंगे, डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू या इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू। समझ आ गया बच्चों? इस ग्राफ में कोई मसला? सर ये आउटफ्लो से सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? ये कौन पूछ रहा है? मोस्टली सर। वसफी। बेटे आउटफ्लो से नहीं इंक्रीज होगी तो किससे सप्लाई इंक्रीज होगी करेंसी की? अगर पैसा लैटविया से बाहर जा रहा है, मींस वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लैटवियन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है। जैसे हम इंपोर्ट्स करते हैं, रुपये की सप्लाई बढ़ती है वर्ल्ड में, फिर उसको वापस लाने के लिए लैटवियन गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डॉलर्स वगैरह, यूरो वगैरह बेचे होंगे और लैट को खरीदा होगा, उसका डिमांड के बाहर शिफ्ट करके वापस एक्सचेंज रेट ऑफिशियल पे ले आए होंगे 0.7 पर डॉलर पर यूरो पे। डॉलर लिख दिया मैंने यहाँ पे, यूरो होना चाहिए था। यूरो। जी बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं? सर आप एनीवन हु स्ट्रगलिंग? वसवी, सर डिमांड राइज की हुई। डिमांड राइज क्यों हुई है आप बताएं मुझे, क्या किया होगा सेंट्रल बैंक ने? सर जी जी। सर मेमूना की आईडी से किसी और ने भी एंट्री हुआ है और मेमूना ऑलरेडी क्लास में है। अच्छा एक मिनट। जी सर मैं हूँ अभी क्लास में। ओके मेरा बेटा, निकालते हैं जो भी दूसरी मेमूना को निकालते हैं। आपको तो पिक्चर वाली आईडी है सर ऊपर है। ऊपर। जी सर एम में इसके नीचे। महीन, महिरा, मेमूना अजहर, मेमूना अजहर।
अच्छा जी, चलिए लेट्स मूव ऑन। समझ आ रहा है बेटे डिमांड क्यों क्यों शिफ्ट हुआ? लाटविया के सेंट्रल बैंक ने यूरोज बेचे होंगे और अपनी करेंसी खरीदी होगी, उसको ऊपर कर देंगे। जब कभी नीचे करना होगा अपनी करेंसी बेचेंगे और यूरोज वगैरह डॉलर्स वगैरह खरीदेंगे, रिजर्व खरीदेंगे, नीचे हो जाएगी। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? नो सर। एक्सचेंज इसको एक्सप्लेन भी उसी से करना है कि एज सीन इन द फिगर the fixed exchange rate at 0.7 lakh per euro. When outflows happened due to recession, supply curve for LAT shifted to the right. Exchange rate would have depreciated, but they bought LAT using foreign exchange reserves. Through that, demand of LAT will shift to D1 and equilibrium to E1 again. LAT exchange rate will get back to zero point 0.7. This is constant intervention through interest rates and selling and buying of currencies, foreign exchange reserves का use. समझ आ गया बच्चों 100%? Why do I feel कुछ बच्चों को नहीं आ रहा लेकिन वो शर्मा के पूछ नहीं रहे? Please do ask बेटे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मुतवक्को है। सर आगे समझो। ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बजट डेफिसिट। मुनीब कुछ देख रहे हो रिपीटिंग क्वेश्चंस? ये कुछ सर्टेनली आसान पेपर नहीं है, बार बार करके आप लोगों को वो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं। बजट डेफिसिट कोई भी बच्चा बता दो मुझे। लेट्स से सर when expenditure is greater than revenue. शाबाश, एक मार्क। थोड़ा सा बजट को भी यहाँ पे डिफाइन कर दो सर एहतियातन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। एक मार्क तो ये है। मुझे लगता है बजट को भी डिफाइन यहाँ करना चाहिए। 2 मार्क्स है ना इसलिए। Tax revenue. सो व्हाट इज बजट? गवर्नमेंट सर स्पेंडिंग जो एंड रेवेन्यू प्लान। गवर्नमेंट की डिटेल्स बता दो, गवर्नमेंट के बजट की और यस, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की डिटेल्स बता दो। स्पेंडिंग्स एंड रेवेन्यू और जो प्लान होता है बजट गवर्नमेंट का डेफिसिट वो होगा कि फॉर सर अपकमिंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल की ईयर। स्पेंडिंग यस, उसके रेवेन्यू से ज्यादा। बाय हाउ मच इज द स्पेंडिंग मोर देन रेवेन्यू, उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट। बच्चों समझ आ गया 100%? सॉरी रिपीट कर दूं? जी. ओके, पहले हम बता देंगे बजट क्या होता है जी। बजट इज अ गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल प्लान फॉर देयर स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू। ठीक है, व्हेन टैक्स रेवेन्यू इज लेस देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान्स, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। जितने से स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है गवर्नमेंट कंपेयर टू टैक्स रेवेन्यू। अदीब हिशाम ताहिर। राइट बच्चों, सबको समझ आ गए? ओके, number D part 2. Analyze using a diagram how fiscal measures to reduce the budget deficit could be used by the Latvian government to lower the relatively high rate of inflation. ये मुझे बता दें जी, अभी अभी जो आए हैं बच्चे, हिशाम ताहिर आप बता दें। गवर्नमेंट पढ़ो जरा, क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एनालाइज यूजिंग अ डायग्राम हाउ फिजिकल मेजर्स होते हैं टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिजिकल पॉलिसी के टूल्स टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को कम किया यानी टैक्सेस बढ़ाए हैं और स्पेंडिंग कम की है, उससे हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कम होगा? हिशाम, कौन सी इन्फ्लेशन कम होगी, क्या ग्राफ बनेगा? क्या मैं तो अभी आया हूँ, क्या हुआ? पढ़ो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट 2। गवर्नमेंट ने फिजिकल मेजर्स यानी टैक्सेस और स्पेंडिंग में चेंजेस किए हैं, अपने बजट डेफिसिट को कम किया है ताकि महंगाई को कम कर सकें। तो उससे, यार ये राफे 2 नंबर लग रहा है मुझे नाम। इज राफे ऑलरेडी इन द क्लास? जी सर। बस ये कोई और है, हमारा और कोई राफे नहीं है। हम 100% चलो शाम ने मीटिंग ही छोड़ दी। आई शुड नॉट हैव आस्क्ड हिम द क्वेश्चन। चले राफे आप बता दो बेटे। बहुत इजी है, पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है D2। Sir, मैं बताऊँ? Wait, just a moment बेटे। Rafi, it's a very easy question. नहीं सर, नहीं यार।
मुझे ये बताओ, बजट डेफिसिट सर रिड्यूस कैसे होता है बेटे, पहले ये बताओ राफे। सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम करती है सर, टैक्स रेट ज्यादा उससे करती है। कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, कौन सी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, इतना आसान क्वेश्चन है सर उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ना। कम ऑन राफे, डिमांड का सर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा राफे। जी सर अब देखो एग्रीगेट इतना डिमांड आसान था, ये 4 मार्क्स तुम मुफ्त के जाया कर दोगे जस्ट बिकॉज दे यूज्ड लाटविया एंड बजट डेफिसिट रिड्यूस। सिंपल डिमांड पर इन्फ्लेशन कम करनी थी, प्राइस लेवल जीडीपी आप लगाएं जी। शॉर्ट रन वाले लगा दें, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम लगाएं। ये था प्राइस लेवल, ये थी नेशनल इनकम जीडीपी। ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए, स्पेंडिंग कम की, एग्रीगेट डिमांड के 4 में से 2 हिस्सों में। सर लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। हाँ लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम E1 पे आया और देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल कर ली। सर हम उसको सप्लाई का फैक्टर बना सकते हैं, लाइक उसको इंक्रीज करके। कैसे सप्लाई इंक्रीज करेंगे आप, वो तो सप्लाई साइड पॉलिसी से होती है बेटे। और लॉन्ग अगर रन में एग्रीगेट इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई कर्व लगेगा तो जरूर सर कम होता है, सप्लाई लेकिन भी वो तो लॉन्ग लेफ्ट रन पे में शिफ्ट होता है। होगी। जी मुनीब क्या कह रहे हो। फिस्कल पॉलिसी की सर बात अगर करिए। इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो सर सप्लाई भी तो हाँ लेफ्ट पे हाँ शिफ्ट ठीक होगी। है ठीक है, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस लगने से इन जनरल डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम करने का इरादा होता है। यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस अकेले से एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, और लेकिन उन्होंने ओवरऑल बजट अपना डेफिसिट कम किया है बेटे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की है, टैक्सेस ज्यादा लिए हैं, अवाम से पैसा खींच लिया है, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। फॉलो कर रहे हो। यस सर सब। ओके जी, एनीवन हु स्टिल स्ट्रगलिंग विद कि ये डिमांड फैक्टर क्यों था, सप्लाई फैक्टर क्यों नहीं था, फिस्कल पॉलिसी थी बेटे। हमने ये ग्राफ कितनी बार किए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का, सिंपल राफे एवरीबॉडी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन था। एनीवन हु स्टिल स्ट्रगलिंग बताइए। ओवर थिंकिंग ना कीजिएगा, क्वेश्चन के मुताबिक चलिएगा, साफ दोबारा देखें। एनालाइज यूजिंग अ डायग्राम, डिमांड सप्लाई वाला डायग्राम बनाना है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला। फिस्कल मेजर्स टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट, ऊपर उसने खुद बता दिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की है, टैक्सेस बढ़ाए हैं। बाय लैटवियन गवर्नमेंट कुड लोअर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कौन सी इन्फ्लेशन कम होगी, डिमांड पुल, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है। अब हम बताएंगे बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बाय इंक्रीजिंग टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी लिख लो बेशक, विल रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, स्पेंडिंग विल रिड्यूस, कंजम्पशन कम होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम, दिस विल शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड टू लेफ्ट, 2 मार्क्स के लिए, एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल रिड्यूस फ्रॉम P to P1। क्लियर हो गया बच्चों, ये एक बार फिर बताऊं, इस स्टेज पे सर गलतियां आगे नहीं सही होनी कह रहे चाहिए। हैं। सही, इस स्टेज पे गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन जी, अच्छा है, मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था। डिस्कस वेदर इट इज बेटर फॉर लैटविया टू स्पेशलाइज इन बैंकिंग सर्विसेज rather than having a more diversified economy. Up to 3, why it should continue specializing in banking services. Up to 3, why they should have a more diversified economy. 1 for conclusion. जी, स्पेशलाइज क्यों करते रहना चाहिए बैंकिंग सर्विसेज सर में। कंपैरेटिव ये एडवांटेज के कौन है, लिए। ये कौन बच्चा बोला है, वेरी गुड, माही। माहीन, शाबाश। स्पेशलाइजेशन मींस कंपैरेटिव एडवांटेज, जरा एक्सप्लेन करो, शाबाश, बोलो बोलो कैसे। सर क्योंकि वो सर्विसेज जो है उसी पे फोकस करेगा, स्पेशलाइज करेगा अपनी बैंकिंग सर्विसेज में, हम्म। जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, जी, इसमें जरूर जैसे बोलिएगा इकोनॉमी कंपैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग एडवांटेज, होगी। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेंगे। ऑलरेडी डाटा बता रहा था कि जी हब बना हुआ है ये बैंकिंग का, दुनिया भर से लोग आते हैं, स्पेशली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप के दरमियान ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, उसके रू इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू इतना बड़ा है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी गई है, तो दे शुड कंटिन्यू स्पेशलाइजिंग ऑन बैंकिंग सर्विसेज because they can produce them at a lower opportunity cost than the others. They have a comparative advantage. Their banking services are above and beyond other European countries. Hence, they should continue specialization. This will increase aggregate demand, employment वगैरह सारा कुछ। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन का, मुझे कोई बताए, बस भी ट्राई करो बेटे, डाइवर्सिफिकेशन।
सर ये कंपैरेटिव एडवांटेज वाला पॉइंट इनफ होगा 3 मार्क्स के लिए? सॉरी सॉरी सॉरी, सर कंपैरेटिव एडवांटेज वाला पॉइंट इनफ होगा 3 मार्क्स के लिए, नहीं, पहले नॉट थ्री फॉर मार्क्स के थ्री, लिए? इट्स अ 3 marks बेटे. 3 marks for benefits of specialization. स्पेशलाइजेशन में की टर्म इज कंपैरेटिव एडवांटेज. उससे इनकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बैंकिंग सर्विसेज बनेंगी. ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट सजेस्ट कर रहा है कि इनकी बैंकिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. माइक बंद कर दो जरा. इनकी बैंकिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. यूरोपियन वेस्टर्न और ईस्ट के दरमियान ब्रिज बन रहा है. दो भाइयों ने बैंक बनाया था, तब से इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है. इट्स बिकम द फाइनेंशियल हब ऑफ यूरोप. ये 3 मार्क्स के लिए बहुत है. द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग हैज़ इम्प्रूव्ड. लोअर कॉस्ट पे बना रहे हैं. ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं आप. इसको एक्सपेंड करो. 3 मार्क्स सिर्फ है. समझ आ रहे हैं? 3 मार्क्स आर फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर वो बैंकिंग के साथ साथ कुछ और भी करते हैं, क्यों, उसमें क्या फायदे हैं. एनीवन जी. कि अगर सिर्फ फिट हो जाता है बैंकिंग सर्विसेज पे तो फिर हम मतलब उस दूसरी चॉइस पे हम कर सकते हैं, मतलब स्पेशलाइज वाला. थोड़ी दोबारा बताइए कि मैं आपकी आवाज़ पूरी सुन नहीं सका. कि सर अगर हमारी बैंकिंग सर्विसेज फेल हो जाती है, लाइक हम नहीं परफॉर्म कर सकते, स्पेशलाइज नहीं कर सकते, तो फिर हम दूसरी तरीके से फिर डाइवर्सिफाई करके स्पेशलाइज कर लें. हाँ, जस्ट दूसरा इन मेथड केस जो जैसे स्प्रेड ग्लोबल हो जाए. फाइनेंशियल क्राइसिस आया था. ठीक है, अरसल ज़िया कंफर्म करें यहाँ पे. मुझे लगता है कोई और बच्चा आपके नाम से आया हुआ है. अरसल कंफर्म करो. एनीवेज, जी बेटे, अब दोबारा बताइएगा. आप सही बोल रहे थे, दोबारा बताइए. सिर्फ रिस्क रिमूव होगा. रिस्क कम हो जाएगा. यस, इफ दे डाइवर्सिफाई इनटू अदर productions other than banking as well, this will reduce their global risk as suggested in the article. 2007-8 के रिसेशन के बाद लाटविया को बहुत धचका लगा था. तो now they'll be less risk oriented because they have other products, other services to lean on as well, not just banking. So अगर इंटरनेशनल डिमांड पैटर्न चेंज होते हैं तो उन पे इतना बुरा असर नहीं होगा. वो थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे. ग्लोबल शॉक्स का उनके ऊपर इतना बुरा असर नहीं आएगा. कंक्लूजन में हमेशा कंपैरेटिव एडवांटेज के हक में बोलिएगा. लैटविया हैज अ 20 इयर्स प्लस, 1988 से बल्कि 40 इयर्स प्लस का भी इनका हो चुका है comparative advantage proven in banking services. So they should not leave their comparative advantage and continue to specialize in banking. However, they could look for further diversification as well without giving up on their banking sector. बच्चे सबको समझ आ गया. ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि वो कहे चाइना क्यों सर्विसेज पे स्पेशलाइज करे, यूरोपियन यूनियन क्यों गुड्स पे स्पेशलाइज करे. जो भी आपको यही कंपैरेटिव एडवांटेज, रिस्क ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वगैरह कम होने, ये सब कुछ समझ आ गया मेरा बेटा. So let's quickly look at the mark scheme to verify all our answers. Sir, जी I जी. have a question. Yes, मैमूना. सर हम ये कह सकते हैं कि अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो जो लाटविया की जो लेबर फोर्स है, द क्वालिटी लाइक माइट नॉट बी एज गुड, क्योंकि व्हाट इफ लाइक द वर्कर्स गेट बोर्ड फ्रॉम देयर जॉब, लाइक अनमोटिवेटेड. बेटे असल में ना वो है डिवीजन ऑफ लेबर के प्रॉब्लम्स. स्पेशलाइजेशन बहुत हाई लेवल है पूरे कंट्री के. सो उसमें ट्राई नॉट टू गो देयर. आई डोंट थिंक उसका मार्क स्कीम आपको कोई सपोर्ट करेगी, मेरा नहीं ख्याल. यस, विंटर 20 की मार्क स्कीम मैंने नहीं खोली थी, कुछ और खोल लिया था. विंटर 20 मार्क स्कीम 21. यस, राइट. सो लेट्स क्विकली सी नाउ. जी बेटे, पहला वाला describe the functions of entrepreneur for a reference to taking decisions, organizing, combining, coordinating factors of production, 1 mark. For a reference to taking a risk, 2 mark. Innovation का तीसरा होता. ठीक है जी, ये सब आपके entrepreneurs के function होते हैं. How does a custom union differ from a free trade area? 1 mark for clear explanation of custom union, 1 for free trade area. Custom union क्या है जी? An agreement between two and more countries to remove trade barriers. और दूसरा क्या है जी? A custom union has common external tariff against non-member countries. Free trade area agreement between two or more countries that allows the countries to freely trade with each other does not have a common external tariff. Any countries can charge their own tariff. ठीक है. सप्लाई डिमांड डायग्राम बनाएं. एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ा था जब इनकी कैपिटल आउटफ्लोज हुई है, गवर्नमेंट ने कैसे
मेंटेन किया. फॉर अ सप्लाई एंड डायग्राम डिमांड डायग्राम showing the equilibrium at 0.7 lakhs per euro, for an explanation of how a government can intervene in a market to maintain a particular price exchange rate through the period 7 and 13. Guidance में देखिएगा, government can intervene in a market to maintain this particular exchange rate on regular basis through sales of foreign reserves, buying selling of currency on the foreign exchange market. इंटरेस्ट रेट भी आप यूज कर सकते थे. सबको क्लियर हो गया ये? आई एम मोर कंसर्न अबाउट दिस क्वेश्चन, कुछ बच्चों को नहीं आया था. Okay, number D, budget deficit. A budget shows the details of government expenditure and government revenue. Budget deficit is amount by which government expenditure exceeds government revenue. आप amount by ना भी लिखें तब भी मार्क मिल जाएगा. 1D2. um, सर जी 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 जी. सर 1C में हम्म. सर उसमें जो डायग्राम बनाना था सर, अगर हम सिर्फ डिमांड सप्लाई ये और फिक्स एक्सचेंज रेट शो कर ले, उसमें हमें 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? आई मीन, you'll have सर to मैं show the कह shifts. ओके सर. कैसे मैनेज करोगे भाई? इस पे कैसे रखा हुआ है? समझ रहे हो? ओके आई डू सी सर. वट ओके यूर सर. सेइंग लॉजिकली. वो भी गलत नहीं है, लेकिन आई वुड नॉट टेक रिस्क ऑफ नॉट शिफ्टिंग सप्लाई बिकॉज ऑफ आउटफ्लोज एंड बाइंग ऑफ लैट्स. वापस डिमांड ऊपर शिफ्ट करके वापस रेट ले आऊं. दैट्स द बेस्ट वे टू गो. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट जीरो, वेलकम जी. ये जो फिजिकल मेजर्स वाला था बेटे, एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल मेजर्स ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट टैक्सेशन टू लोअर द relatively high rate of inflation for an aggregate demand aggregate supply. Diagram showing the shift of aggregate demand curve to the left and a lowering of a general price level जैसे हमने बनाया. मेजर्स क्या है गवर्नमेंट के पास? डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी. एक्सपेंडिचर कम करे, टैक्सेस बढ़ाए. ठीक है. इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी और टैक्सेशन से भी कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट के इंजेक्शन कम होंगे और इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाएगा. क्लियर बच्चों जी? सर डिफ्लेशनरी में और हमारे कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या फर्क है? सेम का नाम डिफरेंट है. ओके. डिफ्लेशनरी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी को क्योंकि वो इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन की तरफ लाती है इकोनॉमी को. और रिफ्लेशनरी आर ई के साथ रिफ्लेशनरी बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को भी रिफ्लेशनरी बोला जाता है. ठीक हो गया? नंबर ई, discussion of advantages of Latvia specializing in banking services, 3 marks. Discussion of advantages of Latvia having a more diversified economy, 3 marks, 1 for conclusion. Advantage of specialization in relation to comparative advantage, existence of a lower opportunity cost ratio. लाजमी लिखना, 2 मार्क्स यहीं पे हैं. उनका मैंने इन्होंने लिखा है जी, बिल्ड अप एन एक्सपर्टीज एंड रेपुटेशन. यस, फॉर लास्ट 30-40 years, 1988 से उनका बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है और अब हब बन गया यूरोप का. एवरीवन यूजेस देयर सर्विसेज. ठीक है. सस्ती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी दे सकते हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, बहुत सारा. आप किसी भी 2 पॉइंट्स को बिल्ड करें, 3 मार्क्स मिल जाएंगे. एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ओवर स्पेशलाइजेशन से आप बच जाते हैं. इंटरनेशनली डिमांड गिरती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, या कोई एक्सटर्नल शॉक 9/11 जैसा होता है, कोविड जैसा, तो आपको मसला तो आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है. यू बिकम लेस रिस्की. They should continue specialization because it's a proven comparative advantage for banking services for them. However, they can start looking at some diversification as well without giving up their proven comparative advantage. ये हो गया जी हमारा जे पेपर. लेट्स नाउ हरी अप, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है. सेकंड पेपर करते हैं जी. यस यस यस. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे. आई कैन नॉट हेयर यू. उधर कोई टीवी प्रोग्राम लगाया हुआ है किसी ने, ऐसे आवाज आ रही है. एनीवेज जी, मार्च 19, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में मैंने ये करवाया था. पोलैंड अ ग्रोइंग इकोनॉमी. कैन यू गाइस रिमेंबर इट? टी-शर्ट में तो नहीं करा. यार ये शायद मैंने आप लोगों को ये पेपर में भी दिया है किसी ने. नो सर. ओके ओके, मे बी नॉट. ठीक है. बहुत सर सारे ये डेट. आपने पिछले साल करवाया था A2 की बैच अच्छा को AS अच्छा. में. नहीं, मुझे लगता है अभी भी मैंने वो जो लिए हैं ना पोर्टफोलियो टेस्ट, कहीं कहीं महीना आप लोगों को मैंने बैरिया में करवाया है ये. मे बी नॉट. चलें चलें, ठीक है. अब मेरे पास हैं जी 20 मिनट. क्या करें? लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट विदाउट द डेटा. फिर जरूरत पड़े देखेंगे.
यार ये किया हुआ है, डेफिनेटली किया हुआ है। अभी मैंने किया, या आप लोगों के साथ या किसी और सेक्शन में, मुझे एल्मा में किया, मुझे याद नहीं आ रहा। सर ये बैरिया के मॉक्स में आया था। बैरिया के मॉक्स में आया था, यस, बॉयज में। ए पार्ट वन, कौन सा पेपर है? 19 जी, 22 वेरिएंट, मार्च 19 वेरिएंट 22। A1 जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आइटम इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑन प्राइमरी इनकम्स। ये बॉयज ने तो किया हुआ है। ऐसे आंसर में आपने शो करना है कि पैसा बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है। प्राइमरी इनकम आपको पता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का मुल्क से बाहर या अंदर आना, रिमिटेंसेज वगैरह। तो आप लिखें इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग इन ओवरसीज बैंक्स, इस तरह करके लिखो। या फिर लिखो वेजेस सेंट होम बाय वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड, कुछ इस तरह का लिखो कि पता लगे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल है। क्योंकि खाली वेजेस लिखी तो वो तो रिवॉर्ड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, व्हाई शुड ही गिव यू अ मार्क? वेजेस रिसीव्ड या इनफ्लो ऑफ वेजेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। समझ आ गया बच्चों? सेकेंडरी इनकम का कोई मुझे बताएगा कोई एग्जांपल? गिफ्ट्स। सर गिफ्ट गिवन, सर हाँ, गिफ्ट गिवन ऑन गिफ्ट्स ऑफ कैश ओवरसीज, charity received from other countries, government spending on overseas embassies, ये बेस्ट है, समथिंग लाइक दैट। पता लगे पैसा मुल्क से अंदर बाहर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जी, व्हाट इज द ट्रेंड इन पोलैंड्स करंट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम 14 टू 16? 14 में देखें, कैलकुलेट करें चारों का बैलेंस। पहले माइनस फिगर्स को जमा कर लें, फिर उसमें से माइनस करते जाएं पॉजिटिव फिगर्स, ठीक है। डेफिसिट लग रहा है मुझे दोनों में, और डेफिसिट लगता है कम हुआ है, जरा देखें प्लीज, वेरीफाई करें। यस सर, डिक्रीजिंग डेफिसिट। डिक्रीज इन डेफिसिट 2 मार्क्स। समझ आ गया सबको? इन सब बैलेंस कैसे हुआ, मैं समझ नहीं आया। हु आर यू फिजा? जी सर। फिजा इसका तरीका क्या होता है? या तो पॉजिटिव फिगर पहले लिखो 9059, माइनस करने शुरू कर दो सारे नेगेटिव बैलेंसेस। ट्रेड इन गुड्स -3255 का क्या मतलब है? इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, इसलिए माइनस में है। फिर माइनस फिगर करते जाओ माइनस, टोटल आंसर अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब है आपका डेफिसिट है। सेम विद 16, पहले पॉजिटिव फिगर्स लिखो, उसमें से माइनस करना शुरू हो जाओ, नेगेटिव फिगर्स, आंसर माइनस में आ जाएगा। बच्चे समझ आ रहे हैं या नहीं? करके दिखा दूं आपको? यस सर, एक दफा करके दिखा दो। ओके, मैं ये 14 का डेटा कॉपी कर रहा हूँ, खाली 14 का नहीं कर सकता। चले मैं ये तीनों का डेटा ही सारा ही करता हूँ कॉपी जी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छी बात है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। राइट, so somewhere here let me post it. बहुत छोटा सा हो गया, इसको कुछ बड़ा करते हैं जी। 14 के बैलेंसेस हैं ये वाले। ट्रेड इन, नहीं इस तरह नहीं होगा, आई हैव टू, क्योंकि मेरा पेन नहीं काम करता तो इसको मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा बेटे, सॉरी। स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोगों को सही तरह दिखा सकूंगा कि मैं क्या यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ये जी, let me make it big enough for you guys to watch and then I'll just calculate one balance to make it clear for you guys। जी बेटे, ये आपके पास आ गया डेटा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हमारे पास नीचे काम करने की जगह बच जाए। इसको यूँ करते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ये है जी आपका डेटा। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ सो यू कैन इजीली विजुलाइज व्हाट आई एम डूइंग। जी, 2014 का मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2014 में बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स पहला हिस्सा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दिस इज -3255। चले मैं यूँ करता हूँ कि आपको पहले पॉजिटिव वाला 9059, ठीक है बेटे, -3255
3255 जो ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस था, माइनस 13961 जो प्राइमरी गुड्स का बैलेंस था, माइनस 377 जो सेकेंडरी इनकम्स का बैलेंस था। अब अब कैलकुलेट करेंगे, कोई बच्चा मुझे बताता है क्या फिगर आ रहा है? -853 नेगेटिव 34। 8534, यस सर। और ये है मिलियन यूरोस। ठीक है, ये आपने इस तरह लिखना है। 16 में क्या हुआ है, यही चीज करेंगे। पहले जो पॉजिटिव फिगर्स है 1949 प्लस 13,700 माइनस 15,859 माइनस 1603, क्या आंसर आएगा जी 16 में? -1273। -1273 मिलियन यूरोज। तो क्या हुआ है, डेफिसिट था, रिड्यूस हो गया, बस डिक्लाइन डेफिसिट, डिक्रीज डेफिसिट। 2 मार्क्स, फिगर्स दे दो, मर्जी है ना दो, कोई मसला नहीं। 100% क्लियर बच्चे? फिजा तो आपको क्लियर बेसिकली हो गया? माइनस चले, करना है। देखो अपने माइनस प्लस जो फिगर्स लिखे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। आई वुड सजेस्ट पहले प्लस फिगर्स को जमा कर लो, फिर माइनस फिगर्स को माइनस करते जाएं, तो आपका बैलेंस निकलता आएगा ना। 4 हिस्सों का बैलेंस है। अगर नेगेटिव आंसर है तो डेफिसिट है, पॉजिटिव आंसर है सरप्लस है। तो देखा हमने नेगेटिव था दोनों में, लेकिन डेफिसिट कम हुआ है ओवर द पीरियड। सर कैलकुलेट करके मेंशन करना कि डेफिसिट कितना कम हुआ है। यही तो क्वेश्चन था उसका मेरा बेटा। आपने ये नहीं बताना, अमाउंट जरूरी नहीं है। 2 मार्क्स के लिए डेफिसिट डिक्रीज्ड, बस दैट्स इनफ। अगर आपको 100% कंफर्म नहीं हो रहा तो आप आंसर में बता दें इतना पहले डेफिसिट था, अब इतना रह गया है, तो इतने से कम हुआ है, लेकिन जरूरत नहीं है 2 मार्क्स के लिए। ठीक हो गया? सर तो पॉजिटिव को नेगेटिव से बस माइनस करना। फिजा आप लॉजिक क्यों नहीं ले रहे हो? हमारे 4 हिस्से हैं करंट अकाउंट के। ट्रेड इन गुड्स में डेफिसिट चल रहा है, प्राइमरी इनकम्स में डेफिसिट है, सेकेंडरी इनकम्स में डेफिसिट, ये सारे माइनस फिगर्स हो गए। सिर्फ ट्रेड इन सर्विसेज में सरप्लस है। ठीक है, अब 9059 से बाकी सारे माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आया वो टोटल करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया, और वो डेफिसिट में था। समझ आ गई बात? लॉजिकली करो ना, इसमें कुछ वो तो मसला नहीं है। ओके। मुझे बात सुनो, मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं, मेरा ट्रेड इन गुड्स वाला सेक्शन 10 रुपए से डेफिसिट हो गया। ठीक है, आपने मुझे 20 रुपए दिए हैं, मेरा ट्रेड इन सर्विसेज वाला 20 रुपए में सरप्लस हो गया। अब ओवरऑल क्या है मेरा? 10 सरप्लस। तो वही चीज है, बस सिंपल, बस वर्ड जरा बड़े मिलियन यूरोज वगैरह लिखने हैं, हर चीज जो ट्रेंड उसमें टर्म दी हुई है। समझ आ गया सबको? जी सर। ओके जी। बी पार्ट, आइडेंटिफाई 2 पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द पोलिश गवर्नमेंट दैट कुड बी कंसिडर्ड एज सप्लाई साइड पॉलिसीज। मैं स्ट्रेट अवे डेटा पे जा रहा हूँ। सेकेंड पैराग्राफ, एंड ऑफ इट समवेयर, कहीं पे था नहीं, कहीं पे था कि इन्होंने क्या किया है। अच्छा नहीं, सॉरी, दूसरा एक्सट्रैक्ट है। हाँ, सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई साइड पॉलिसीज आपको पता है। उन्होंने क्या किया? एक्सपैंडिंग एजुकेशन। हाँ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सपैंड की है, 1 मार्क। सेकेंडली, पोलिश गवर्नमेंट यूज फंड्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू डेवलप ट्रांसपोर्ट लिंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड की है, दूसरा मार्क। समझ आ गया? बस ये आइडेंटिफाई करके ऐसे लिख दो, 2 मार्क्स आ गए। जी बच्चों, समझ आ रहा है? पेपर आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? सर आ रही है समझ। आसान पेपर होते जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि हम पहले से कॉन्फिडेंट हैं। जस्ट गो, 50% ऑफ इट इज सॉल्व बाय योर रिजॉल्व, बाय योर कॉन्फिडेंस। डू नॉट लेट इट गेट टू यू। सी पार्ट जी अब डायग्राम वाला है, और हम ये बहुत दफा कर चुके हैं। इज माहीन अली इन द क्लास? जी सर। माहीन अली, सी का आंसर बताओ मुझे। Explain with the help of a diagram why the imposition of an indirect tax, such as general sales tax, could discourage entrepreneurs from investing. कौन सा ग्राफ बनाओगे मेरा बेटा? डिमांड सप्लाई। हाँ, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा इनडायरेक्ट टैक्स लगने से? सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट। उससे प्राइसेस बढ़ेंगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट कम होगा, वो डिस्करेज हो जाएंगे। 2 मार्क्स ग्राफ के। फिर आपने कहना है एज अ रिजल्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई टू द लेफ्ट एंड राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, prices rose, quantity demanded contracted, producers profit will fall, less of them will be investing now, they'll be discouraged. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन?
ये देखो रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। सर माहिम ये क्लियर हो गया जी? एग्रीगेट सप्लाई वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जनरल सेल्स टैक्स है ना सारी गुड्स के ऊपर। नहीं मेरा बेटा, जनरल सेल्स टैक्स नाम है एक टैक्स का, ये हर चीज पे नहीं लगता। ओके। जीएसटी इज जस्ट द नेम ऑफ द टैक्स, जैसे टैरिफ नाम है, जरूरी नहीं है सारी गुड्स पे लगे, बल्कि इसमें उसने मार्क स्कीम में कहा होना है कि अगर बच्चा एग्रीगेट सप्लाई वाला बना दे तो गिव देम नो मार्क। देखो मेरा बेटा, उसने क्या डायग्राम बनाओ, इनडायरेक्ट टैक्स लगे, जैसे जनरल सेल्स टैक्स है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, उससे एंटरप्रेन्योर्स क्यों डिस्करेज हो रहे हैं? जरूरी नहीं है पूरे मुल्क में लगाओ, यहाँ पे मैक्रो की आपने, जब तक वो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कह रहा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, डोंट ड्रॉ देम। ज्यादातर यही बनते हैं, ठीक है? जी सर। Number D, G. Consider using extract to the likely changes in Poland's aggregate demand in 2017. Figure extract यूज करना पड़ेगा। पहले पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं जी? 2017 में आउटलुक इज ग्लूमी, concerns regarding global economy and domestic economic policy, private consumption, public investment were expected to continue to be strong, but a significant slowdown in economic activity was expected throughout the year. तो पहले तो एग्रीगेट डिमांड गिरने का चांस है, क्योंकि इकोनॉमी ग्लोबली भी और लोकली भी आउटलुक ग्लूमी है। लगता है कि अब इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे लोग, कंजम्पशन पहले से स्लो होगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। फिर उसके बाद उसने बोला सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट कंपनीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 16। सर्वे ऑफ पोलिश सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड कंपनी वर रिलक्टेंट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स। उससे इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, तो दोबारा लगता है कि एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। सबसे एंड पे लिखा हुआ पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग वाज वन पॉसिबल वे इन विच पोलैंड्स इकोनॉमिक ग्रोथ कुड हैव बीन बूस्टेड इन 17। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करे, बजट को डेफिसिट करे, अदर डिमांड स्टिमुलेटिंग एक्शंस करे, तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। तो 4 मार्क्स थे, हमने कैसे किया? दो फैक्टर्स लिए डेटा से, 17 में क्या आउटलुक ग्लूमी लग रही है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कम होने वाली है, कंपनीज आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट बिकॉज 2016 से ऐसा स्टार्ट हो गया, तो 17 में भी ऐसे होने वाला है, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। 2 मार्क्स के लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे, फिजिकल पॉलिसी को एक्सपेंशन नहीं कर दे, बजट को डेफिसिट कर दे, जैसे डेटा कह रहा है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट था तुमने यहाँ से लेना था, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। कंसिडर है, कंक्लूजन जरूरत नहीं है, देना चाहो तो दे दो। इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट इन कंजम्पशन फॉल्स टू डिटरमिन द टोटल इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड इन 2017। आखिरी क्वेश्चन जी, डिस्कस वेदर इंक्रीजिंग द पोलिश गवर्नमेंट बजट डेफिसिट will always have a positive impact on Poland's economy. Again, go to the syllabus. अगर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट बढ़ाती है, यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करती है, तो पोलैंड की इकोनॉमी पे 3 मार्क्स के लिए क्या अच्छे इफेक्ट आएंगे, क्या बुरे इफेक्ट आएंगे? कौन अटेम्प्ट करना चाहता है? सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगी, डिमांड इन्फ्लेशन राइज होगी, कॉस्ट पुश एम्प्लॉयमेंट का भी इससे राइज कैसे होगी। ताल्लुक बनाया आपने, पहले मुझे ये समझाओ। सर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो सर बेटे 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 एग्री। बेटे बेटे, इंटरेस्ट रेट का कहाँ से ताल्लुक निकाल रहे हो? बजट डेफिसिट है, फिस्कल पॉलिसी है। ओके सर। अब सॉरी रायहान सर। देखो, गलत कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस से सर दोबारा बताओ रायहान। सर इन इनकम टैक्स सर टैक्स कम होंगे, बढ़ेगी। टैक्सेस कम और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा, उससे क्या हाँ होगा? जी। सर एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन आएगा। तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप, डोंट स्किप पार्ट्स। शाबाश शाबाश। गवर्नमेंट विल रिड्यूस टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दिस विल ये इंक्रीज सर डिस्पोजेबल कंजप्शन इनकम, बढ़ेगी और सर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो कंजम्पशन सर विल उससे इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट विल सर उससे इंक्रीज, गवर्नमेंट इंजेक्शन स्पेंडिंग इज होगा, ऑलरेडी एग्रीगेट इंक्रीज, डिमांड का प्राइस भी लिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, अपवर्ड मल्टीप्लायर, ये पूरा लिख दो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के फायदे। हाउएवर नुकसान क्या होगा? इफ एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट राइज, डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल अकर। ठीक है? इसी तरह आपकी इनकम्स बढ़ेंगी, लोग ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है। ठीक है? कंक्लूजन में, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पॉइंट ऑफ वेयर एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स। इफ वी वर ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, more inflation will occur, but if we had spare capacity, we were below full employment, only output, employment and GDP will rise, price level will not rise. समझ आ रहा है बेटे? सिंपली आप लोग पता नहीं क्यों पोलैंड का सुनते हो परेशान हो जाते हो। इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन ऑन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के फायदे एंड नुकसान। यू सर वांट तो मी केस से एप्लीकेशन करना के मार्क्स नहीं होते अलग? इसमें तो कोई ऐसी एप्लीकेशन थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से करवा दी है। ठीक है?
इसमें पोलैंड के बारे में उसने बहुत इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन केस में कुछ ऐसा था नहीं। राइट एट द एंड उसने कहा वन वे वाज कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करे, उसके बाद डेटा ही खत्म हो गया था। ठीक है, आप बोलते रहो पोलैंड का, लेकिन कोई लिंक था नहीं डेटा के साथ इस क्वेश्चन में। मतलब उसने ये नहीं कहा ना, जैसे पिछले में था यूजिंग एक्सट्रैक्ट, इसमें उसने एक्सट्रैक्ट यूज करने की बात नहीं की। फॉलो कर रहे हो? Okay. जी बच्चे, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई रैप द क्लास अप फॉर A1? सर ये एक दफा दोबारा समझा दो लास्ट क्वेश्चन। ये मार्क्सिम देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। पहला वाला क्या था जी? प्राइमरी इनकम्स में क्या आता है? स्पेसिफिक एग्जांपल और अ ब्रॉड कंपोनेंट, ई.जी. प्रॉफिट और डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ओवरसीज, रेमिटेंसेस फ्रॉम इनकम्स अर्न्ड अब्रॉड, समथिंग। और दूसरे के केस में आपने सेकेंडरी इनकम्स का बोलना था गवर्नमेंट एड, स्पेंडिंग ऑन ओवरसीज एम्बेसीज, गिफ्ट्स ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज, समथिंग लाइक दैट। करंट बैलेंस शोज अ डिक्लाइनिंग डेफिसिट, कोई जरूरत नहीं है फिगर्स की, दे दो अच्छी बात है। फिर जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच वैलिड पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसीज में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, प्राइवेटाइजेशन, बहुत कुछ था। मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स थी, यानी प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहे हैं। हम डेटा नहीं पढ़ा था इसलिए जरा थोड़ा सा आपसे मिस हो रहा था। Appropriate diagram G, 2 marks for accompanying explanation that shows why this will deter entrepreneurs for investment. Indirect tax लगने से guidance में देखिए supply curve will shift to the left, price will rise, quantity demanded गिरेगी. This shows that entrepreneurs will face a risk, a rise in price and a fall in sales and profit. Hence they will be discouraged to invest. देखिए आप shifts of aggregate supply curve are not acceptable, या मीन समझ रहे हैं? जी सर। जी मेरे बेटा। नंबर डी पार्ट, वो कहते हैं एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। हमने इसमें निकाला था जी कि आउटलुक ग्लूमी है, वो सारा कुछ इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज आई एम इन अ रश टू डू द लास्ट क्वेश्चन एंड एंड द क्लास। ये वाला फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ potential positive effects of an increasing budget deficit on aggregate demand। एक मार्क तो उसने पहले आपको दे दिया कि आपको बजट डेफिसिट इंक्रीज करने का मतलब पता है कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। ठीक है, तो एक मार्क उसका, 2 मार्क्स बेनिफिट, 2 मार्क्स प्रॉब्लम्स, 1 मार्क कंक्लूजन। तो ये देखो, कैंडिडेट्स नीड टू एक्सप्लेन दैट इन इंक्रीजिंग बजट डेफिसिट रिप्रेजेंट्स an increase in aggregate demand. This could be caused by a fall in taxes that will increase consumption and or a rise in government spending that has a direct effect upon aggregate demand. They need to explain that this will shift aggregate demand towards right and increase equilibrium national income. Then they need to explain the impact that can be on prices, output, employment, and that depends upon the availability of unused resources। क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थे जहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व इनइलास्टिक हो चुका था, तो उससे महंगाई आएगी। लेकिन अगर हमारे पास स्पेयर रिसोर्सेज थे तो सारे एम्स हासिल हो जाएंगे और महंगाई भी नहीं आएगी। अदन समझ आई बात? यस सर। नहीं, अगर नहीं तो मैं दोबारा क्लियर कर दूं। आई एम नॉट इन सच अ हरी, बताएं मुझे। मैं सर मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा था कि वो क्या ये कह रहे हैं कि बजट डेफिसिट को मजीद इंक्रीज कर दिया जाए जी या इम्प्रूव? एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। बजट डेफिसिट क्या है? स्पेंडिंग ज्यादा, टैक्सेस कम। मजीद इंक्रीज का मतलब क्या है? यस स्पेंडिंग और सर। बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस और कम करें, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ओके सर। Yes, don't worry about these statements, Poland वगैरह। Budget deficit increase, expansionary fiscal policy. Budget deficit reduce या surplus, contractionary fiscal policy. इंटरेस्ट मनी सप्लाई वगैरह रियायन आर फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी, माइंड का हिस्सा है वो। अब ये पॉलिसीज बेटे आप लोगों के माइंड में जमा हो जानी चाहिए, बहुत अरसा हो गया, सेपरेट हो जानी चाहिए एक दूसरे से, तो कंफ्यूजन मुझे नहीं क्वेश्चन आनी नहीं समझ चाहिए। आ रही थी। वो शाबाश। वैसे ना पहले मैं ना इसलिए मेरे से ना वो वो हो फिजिकल जाता है, वो हो जाता है। जस्ट राइट वेरी केयरफुली, फिस्कल के पहले ही ऊपर टूल्स लिख देना TNG, और बताना कि टैक्सेस गवर्नमेंट कम करेगी, स्पेंडिंग बढ़ाएगी, उससे एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन आएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम, GDP ज़्यादा, अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई। लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे जहाँ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इनइलास्टिक हो रहा था, तो उससे महंगाई आना शुरू हो जाएगी और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं बढ़ेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन where we were on the long run aggregate supply curve of an economy, whether rise in aggregate demand is always beneficial or not। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर।
दैट्स इट जी, वी डन विद, Yes, sir. यस कल आखिरी हमारे पेपर्स होंगे, एंड देन वी डन, A1s can